हैं, चलो. Okay, so let's start. ठीक है. Since all of you have joined us in graphology workshop, so any idea what graphology is? Reading someone's writing. Yes, exactly. Anyone else? What graphology is? Analyzing someone's handwriting and finding out like what kind of person they are and what mood they wrote that Yes. particular Mm-hmm. piece of work in. Definitely. Yes, yes, Gayatri, you're correct. So basically, graphology and signature analysis helps us in analyzing the personality traits of the person. Okay. Also, we can, bring about certain changes in our traits through rectification of this, handwriting, your handwritings. So today we'll learn a very small part of your Uh, graphology, which is your alphabet T. Okay. Online करें. Any doubt? जिपलाइन के बाद अपन ने रिचार्ज कराया था जिपलाइन के टाइम पे. Okay. Now I have muted all the participants. In case you have any doubts, just pen it down and we'll take all the doubts post the session. Today we'll learn alphabet T. Okay. We have all the alphabets in graphology A to Z and a lot of other things. But today we'll focus on alphabet T. First thing we'll see is so this is the vertical placement of your crossbars. T का crossbar क्या होता है? ये हमारा alphabet T है. तो ये जो आपकी line होती है, this is called as crossbar. ठीक है. Now, if an individual is making T alphabet, तो वो अपना क्रॉसबार कहाँ पर प्लेस करते हैं, वो बहुत सारी चीजें बताता है उस इंसान के बारे में. ठीक है. Now, if the writer is placing their T bar इधर, ये number 1 वाला, wait, okay, this one, number 1, which is your this T. ठीक है. T bar क्रॉस बार कहाँ पर है? बिल्कुल T के नीचे. Now this will indicate that the writer is lacking confidence. ठीक है. They have love objectives and they aim towards life, but they lack confidence. Now, if you come on to the second one here, so in this case, your T looks like this. इधर पहले से थोड़ा सा ऊपर बनता है, but again 50% से नीचे रहता है. This is your 50%. This was 1 and this is 2. We are discussing 2, which is this one. The writer seems to have moderate confidence level. हम उनकी vertical placement of crossbar से उनका confidence level बता सकते हैं. People are still joining. So if the person is placing their crossbar here, which is this one, this will denote a moderate self-confidence, a moderate level of confidence. Now, if you see a person making this third type of T, which is here, जो क्रॉसबार है उसका प्लेसमेंट
50% से ऊपर है. What do you think this will indicate? Anyone? Seems like this person is confident enough, not moderate. I mean, he's confident in what he or she is doing. Exactly. Slightly So, more hmm, confident. yes, exactly. So here the और writer डाइटरी is माइंड नहीं very है. confident. हाँ, फ्लिकरिंग माइंड नहीं है. हाँ, clarity of thoughts. Yes, there will be a clarity of thoughts, and also here the writer will gain high quality long term achievement. They're always thinking of high quality and long term achievements. ठीक है. Now coming to the fourth one, जिसमें क्रॉस बार हवा में है. ये टी बनाया और ये क्रॉस बार है, वो हमारे टी के स्टेम को टच नहीं कर रहा है. दिस फोर्थ टाइप, दिस वन. Now here the writer is not living in reality. The writer has just build a castle in the air. हवा में बातें करते हैं. Any doubts in the vertical placement of crossbar? No, ma'am. Great. चलो, let's come to the height of T. अब हमारा जो T है Savya, उसकी I have a height. doubt. Yes. Ria. Hi. Yes, Riya. I Hi. was asking, the fourth one, does it Hmm. also say the person is overconfident? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आता है. Okay. ठीक है, वो बिल्कुल मतलब हवा में बात करते हैं तो हाँ, आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट. एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, एक होता है उससे भी ऊपर का कॉन्फिडेंस. तो ये वो चीज है, Okay. बिल्कुल ड्रीम्स में रहना. Okay, I have a यस. question. Illusions. देखो, Okay. नॉर्मली एक इंसान अगर लिखेगा तो वो मोस्टली जो होते हैं वो सेकंड और थर्ड के बीच में ही रहते हैं. पर व्हाट इफ बंदा कोई जल्दी जल्दी में ऊपर कर रहा है, कोई नीचे कर रहा है, तो उसको हम प्रेडिक्ट कैसे करेंगे? उसमें जो मेजोरिटी बार्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम मेजॉरिटी. प्रेडिक्ट करें. यस. ओके. वो एक सेट पैटर्न होता है. एक आधे में आपको ऊपर नीचे दिखेगा, बट मेजॉरिटी में आपको पैटर्न दिख जाएगा. ठीक है. नाउ अल्फाबेट टी की we'll study height. ठीक है. Now here, number 1. इसका हम कंपैरिजन करेंगे एक लेटर से. I'll just draw. यहाँ पर T की लेंथ छोटी है हमारे H से, राइट? ऐसे. इस केस में द राइटर विल बी हैविंग लो ईगो. द राइटर माइट बी क्लेवर, बट द राइटर विल नेवर शो इट. ये जो स्टेम है हमारे टी की, दिस थिंग, क्रॉस बार ये होता है लाइन. जो स्टेम है ये होती है. ठीक है. स्टेम दिखाती क्या है? हमारी मेंटल ईगो. ठीक है. अब जब ये छोटा है हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फाबेट से, तो इस केस में वो लो ईगो दिखाएगा. द राइटर माइट बी क्लेवर बट विल नॉट शो द क्लेवरनेस. नेक्स्ट, दिस इज टी. सॉरी, आई जस्ट यूज अ डार्कर पेन. This is T and this is H. This is the second case. This was the first case जहां पर हमारा T छोटा है, और this is the second case जहां पर वो बिल्कुल बैलेंस पर है. तो इस केस में the writer will be having equal ego to his intelligence. जितना आता है उतना बोलते हैं. Balanced ego. Number 3, where
टी ऐसा है और एच ऐसा है। अगर मान लो मैं द लिख रही हूँ तो इट विल बी लाइक दिस। ये डिफरेंस ऑफ हाइट, यहाँ पर एच का हाइट इज स्मॉलर। तो यहाँ पर द राइटर हैज ग्रेट ईगो एंड द राइटर ऑल्सो शोज ऑफ। दिस इज हेल्दी। ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। Even this is healthy. The second one, this is correct way of writing. But when you spot someone is writing T like this, then you need to rectify this person. Fourth type, unusually long. Very high ego, but this person can be easily fooled. कोई भी आसानी से बेवकूफ बना देता है इन्हें, और ये बन भी जाते हैं। इफ यू टेल दिस पर्सन दैट अभी रात नहीं दिन हो रहा है, दे विल बी लाइक हाँ दिन हो रहा है, बट इनकी ईगो बहुत हाई रहती है। कौन सा वाला रखे हो? दिस वन, फोर्थ केस, जहां पर ओके अनयूजुअली लॉन्ग टी रहता है। ओके एंड ठीक व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? है, रीजन इज कि जो हमारा टी है वो लाइक द स्टेम ऑफ द टी, वो दिखाता ही हमारा मेंटल ईगो और इंटेलिजेंस है, उसका इंडिकेशन वो ओके है। ठीक है, ओके लेट्स कम ऑन टू द शेप ऑफ योर क्रॉस बार, क्योंकि क्रॉस बार की शेप्स भी बहुत कुछ बताती है। शेप ऑफ क्रॉस बार, नाउ सी, you might see people making a crossbar like this, curved. You might see people making a crossbar like this. You might see people making a crossbar like this. Then you have this. Then you have ऐसे। इसमें आपको शेडिंग पता नहीं चलेगा, वेट, I'll draw it again. When we use a pen, तो होता है ना, हम इधर से प्रेशर ज्यादा डालते हैं और ऐसे छोड़ देते हैं पेन को, और इधर से प्रेशर ज्यादा डाल के ऐसे छोड़ देते हैं, वैसे लाइटर पेन का शेड आता है। समझ आया? एनीवन? यस मैम, समझ आया। ठीक है ना? हाँ हाँ समझ ठीक है, तो वी हैव अ लॉट ऑफ शेप्स ऑफ योर क्रॉस बार्स। पहले से शुरू करते हैं। जब आप देख रहे हो राइटर ऐसा कर्व्ड टी बार बना रहा है, दिस वन, दिस, ये क्या इंडिकेट करेगा? द राइटर इज वर्किंग फ्लेक्सिबल on their self improvement drive. The writer is trying to improve their own self. कैन वी से दैट कि राइटर इज फ्लेक्सिबल एज वेल? Flexible कैसे होगा? फ्लेक्सिबल एज इन कि हाँ ठीक है हम्म, वो जैसे होते हैं ना, कुछ लोग बहुत स्ट्रिंजेंट होते हैं कि नहीं मैंने बोल दिया तो बोल दिया। एक होता है कि लोग कुछ लोग फ्लेक्सिबल होते हैं कि ठीक है हम्म। तो कैन वी से दैट? नहीं नहीं, नहीं, क्योंकि यहाँ, आज नहीं। नहीं, यहाँ पर नहीं आएगा। टी अल्फाबेट वो चीज नहीं दिखाता है। ओके ठीक है, ओके, दिस वन, सेकेंड वन, जहां पर ऐसे जाता है हमारा क्रॉस बार, तो यहाँ पर ये दिखाएगा कि राइटर जो है, उन्होंने अपने गोल्स अचीव नहीं करे हैं। दे आर फ्रस्ट्रेटेड एंड दे आर इरिटेटेड, और वो जो फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन है, ये अपने क्लोज लोगों पे उतारते होंगे, वेरी क्लोज पीपल, फैमिली, फ्रेंड्स, पार्टनर। देन यू सी दिस थर्ड वन, दिस थिंग,
So here the writer has a lot of excuses for not performing within their capacity. अरे मैं बीमार था इसीलिए वो असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, या फिर XYZ reasons. They always have excuses for not being able to perform at par. जितनी उनकी कैपेसिटी होती है उससे कम परफॉर्मेंस देते हैं, एंड दे हैव एक्सक्यूजेस फॉर दैट. नेक्स्ट, fourth one, this one. When you see a crossbar like this, so this will show that the writer is very enthusiastic. They have this tendency to achieve a lot of things. नेक्स्ट, ये वाला. इस केस में क्या होता है, जब हम पेन एक्चुअली यूज करते हैं ना, आई डोंट नो इफ आई हैव दिस पेन और नॉट, वेट, नहीं, यहाँ पर नहीं है वो पेन, तो वो नहीं पता चलेगा. बट हम जनरली स्ट्रोक्स मारते हैं ना पेन से, ठीक है, तो स्ट्रोक में एक साइड डार्क रहती है और एक साइड लाइट आ जाती है. सो व्हेन यू सी कि यहाँ से डार्क है और यहाँ पर जाके ऐसे लाइट स्ट्रोक आ रहा है, इस केस में व्हाट डू यू थिंक की होगा? The writer is sarcastic. They're very sharp in their comments towards others. The writer is शब इनको थर्ड sarcastic. लास्ट बताओगे? कौन से वाला? थर्ड लास्ट जो when the stroke is going upwards. This one? तो इसमें क्या था? The writer is enthusiastic. They have a tendency to achieve a lot of things. Okay. ठीक है. उसके बाद जो आता है, that shows that the writer is sarcastic and makes very sharp comments but on others. ये वाला. नेक्स्ट वाले में Okay. जब प्रेशर इधर है और ऐसे स्ट्रोक मारा है टुवर्ड्स लेफ्ट, तो इस केस में द राइटर इज sarcastic टुवर्ड्स देयर ओन सेल्फ. I'll show you 3 more shapes. Wait. You'll also see a crossbar like this. ऐसे wave में. Very common in children also. So this indicates that the writer is capable of laughing at their own self. They are very fun loving. हंसी मजाक करते हैं, खुद पे भी हंस लेते हैं, लोगों के साथ मिलके बैठ के हंस लेते हैं, बातें अपने दिल पे नहीं लेते हैं. There are 2 more crossbars. See, one is ऐसे हुक पीछे की तरफ, one is ऐसे हुक आगे की तरफ. ये हुक जहां पे पीछे की तरफ है, दिस पार्ट इन पर्टिकुलर, तो ये क्या दिखाएगा? द पर्सन इज हुक्ड इनटू द पास्ट. ऑल्सो इन लोगों को पार्शियलिटी, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल पसंद नहीं होता है. They have had bad experiences in their past. They might be irritated with their past. And when you see this hook आगे की तरफ, right side की तरफ, तो ये क्या दिखाएगा? Insecurity about future. Very apprehensive towards their future. Any doubts still here? Should I move forward with the shape of stem? Okay. Next is shape of stem. Shape of stem माने ऐसे, ऐसे, ठीक है, ये.
You have seen people making tea like this. You have seen people making tea like this. You have seen people making tea like this. Right? Taking the first two cases, जहां पर हम एक सिंपल टी बना रहे हैं. इस केस में द राइटर इज रफ, blunt, and they also have a tendency to destroy relationships. Now, relationship जरूरी नहीं partner के साथ हो. In general, they can, because of their blunt and rude, not rude but blunt nature, they have a tendency of spoiling their relationships. And when you see the second one, जो curve देते हैं T में, this will show that the writer is soft in their relationships, or soft in their comments which help them maintain relationship. If you see my handwriting, you will see the T of first case, this one. In your handwriting you might spot a T which is curved. This automatically shows that you are soft in your language, or you are a little blunt in your language. आप ये देख के बता सकते हो, अरे आप तो ब्लंट हो थोड़े से, अरे आप तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो. राइट? इसके साथ कॉम्बिनेशन में वी कैन ऑल्सो स्टडी लेंथ ऑफ द क्रॉस बार. वेट, लेंथ ऑफ क्रॉस बार. कुछ लोगों का टी आपने देखा होगा, उसमें से ऊपर का ये जो क्रॉस बार होता है वो मिसिंग होता है. तो वो टी कैसे लिखते हैं? बस ऐसे. यहाँ पर वो राइटर के बारे में क्या दिखाएगा? द राइटर डजंट मेक एफर्ट्स, doesn't give final touch to their work. बस काम किया, दे दिया, खत्म किया. कोई पर्सनल टच नहीं है, कोई फाइनल टच नहीं है, कोई एफर्ट्स नहीं है, दिख रहा है. नेक्स्ट, जहां पर छोटा सा क्रॉस बार है, वेरी स्मॉल क्रॉस बार, ऐसे. सॉरी, ये दिस वन. आई इरेज द फर्स्ट वन. ठीक है. व्हेन यू सी अ वेरी टाइनी, वेरी स्मॉल क्रॉस बार, और व्हेन यू सी ये चीज डबल क्रॉस बार ऐसे दे दिया, तो यहां पर द राइटर मेक श्योर्स कि वो एक फाइनल टच देंगे, बट वो कंप्लीट एफर्ट से नहीं देंगे. एक बार बस ऊपर से गो थ्रू कर लिया, खत्म किया. इसका नेक्स्ट केस देखते हैं. दिस रेगुलर, या फिर हम बोलेंगे जो अप्रोप्रिएट होना चाहिए. Now, in this case, this will make the writer a strong individual. It will give a strong sustaining power and a greater tendency to achieve a lot of success. When you are seeing that the person is making a tea like this or like this, you can always correct them and tell them to make a tea like this. जैसे ही वो अपनी हैंडराइटिंग में ये चेंज लेकर आएंगे टी का, you will automatically see that they will start moving towards a tendency of achieving success, of completing their work, giving in efforts. Sustaining power उनकी बढ़ जाएगी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमें सबको रेक्टिफाई करना चाहिए अगर नहीं है हमारे पास ये चीज तो. नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग केसेस, ये TH या फिर श्रव्या. यस,
एक क्वेश्चन है, Yes. जो हमने टी का वो बनाया था ना, हाउ वी मेक टी, कर्व वाला टी और बिल्कुल स्ट्रेट टी, द वन दैट यू हैव, बिकॉज मैंने, अगर आपको याद हो तो आपको एक शेयर भी किया था कि व्हाट इफ अ पर्सन इज हम्बल, इज रेडी टू लिसन, बट वो इतना सरकास्टिक, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, मतलब बोलता है बट थोड़ा सा ना बहुत पोलाइट वे में होता है कभी, कि जिसका टी बिल्कुल जैसे स्ट्रेट एंड कट वाला टी होता है, जैसे क्रॉस काइंड ऑफ टी वो हो, पर वो वैसा ना हो जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। कभी होता है कि कभी कॉन्ट्रडिक्ट हो जाए। द थिंग इज कि हम उसका देखो, अगर मैंने ये वर्ड लिखा है लेंथ, ठीक है, तो इसमें आप हम्म सिर्फ टी को एनालाइज नहीं करोगे। टी को एनालाइज यूल डेफिनेटली डू, बट टी के साथ में बाकी अल्फाबेट्स आएंगे, ठीक है, मेरा ओके। स्लांट आएगा, ठीक है, मेरा साइज आएगा, स्क्रिप्ट का बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे। तो जब हम एक कंप्लीट सैंपल को एनालाइज करेंगे तो उसमें से आपको एक ट्रेट कम से कम नहीं तो 5 से 6 बार निकल के आएगा, दिखेगा बहुत एविडेंटली, बहुत क्लियरली, ठीक है। बट इफ यू आर सीइंग कि उसका टी ये वाला कांस्टेंट है, तो इस केस में द राइटर इज ब्लंट। उसको जब जो चीज बोलनी होती है फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉरी, उसको जब जो चीज बोलनी होती है वो बोलेगा या बोलेगी। ओके। सामने से सार्कास्टिक कमेंट्स आएंगे, हो सकता है उसका एक दूसरा अल्फाबेट ऐसा हो जो उसको सॉफ्ट नेचर्ड बना रहा हो, तो वो हमारे पास कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। सॉफ्ट है बट जब जरूरत पड़ेगी तब वो ब्लंट होंगे। फ्लैट हो जाएगा। यस, ठीक है। नाउ कमिंग टू योर फोर्थ एंड वेरी इंटरेस्टिंग केस, जहां पर आपका ये जो लाइन है ये ऐसे क्रॉस करती है दूसरे अल्फाबेट तक। तो मैंने अगर द लिखा तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे। दिस इज योर फोर्थ केस। Now here you will see that the writer has a hiding tendency and a cheating tendency or a deceiving nature. This is something जो आप स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकते हो कि इस बंदे में हाइडिंग टेंडेंसीज हैं, चीटिंग एंड डिसीविंग टेंडेंसीज हैं, ठीक है। दे सीम कि they are not like that, they are very nice people, they are very honest people, very determined, but this is not the case. जो लूप के साथ एच बनाते हैं, टी एन एच का लूप बनाते हैं basically। नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, कौन सा? वेट वेट वेट, जो आप लूप अभी हमने नहीं पढ़ा है, ये आप देखेंगे इसमें जाएगा दिस। ओके। ओके, जो दोनों को साथ में नहीं करते, हाँ साथ भी हो पर ठीक है। समझ गए हम्म ये चीज? नेक्स्ट, got it। let's quickly complete the alphabet. Horizontal placement of crossbar में, अब देखो, when you see a person making a crossbar like this, ये जो प्लेसमेंट है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट आपके क्रॉसबार की, जब ये आप ऐसे देखते हो, टी ऐसे बना रखा है, ठीक है। सो हियर द राइटर विल नेवर एक्सेप्ट और फेस फैक्ट्स। फैक्ट्स होते हैं ना कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, होती है, ये उसमें बिलीव नहीं करते। They always procrastinate this kind of tea. This is your case 1. Case 2, this, ये बस इतना क्रॉस बार बना है। Here the writer is sticking towards the past, पहली चीज। They are trying to face the facts, but again they are stuck onto certain things.
They are not able to move on. They are trying, but they are not able to. Third, अब देखो ये चीज है और फिर आप देख रहे हो ऐसे हुक भी है या फिर कुछ में ये चीज बना है, तो यहाँ से आपकी ये चीजें कंफर्म हो जाती हैं और भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल जाता है। और आपको और भी अल्फाबेट से ये एविडेंस मिलेगा इफ द राइटर इज पास्ट ओरिएंटेड और द राइटर इज स्टक इन द पास्ट। नेक्स्ट, दिस इज योर अप्रोप्रिएट वन। ठीक है, इसमें क्या रहता है, जो राइटर है वो अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करता है, ओपन है, विलिंग है, और उस गलती से जो सीखते हैं उससे अपना फ्यूचर में जितने भी काम करते हैं उस पे वो इम्प्रूवमेंट्स लेकर आते हैं। सो दिस इज अ वेरी नाइस ट्रेट जो होना चाहिए। तो बेसिकली आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट यहाँ होनी चाहिए। इफ आई टॉक अबाउट हाउ टू मेक अप्रोप्रिएट टी, तो वो आपका 50% से थोड़ा सा ऊपर आएगा। ये मेरा टी है, दिस इज माई 50%, तो ये दिस शुड बी द राइट वे ऑफ मेकिंग अ टी। नेक्स्ट, ये चीज आपका टी का क्रॉस बार सिर्फ राइट साइड पे दिख रहा है। नाउ हियर the writer is not willing to go back into the past. They want to move forward towards future. इसी में if you see this, the fourth case, टी बना रहे हैं बट ये ऐसे ऐसे, हमारा जो टी का क्रॉस बार है वो ब्रोकन है, बट वो सिर्फ राइट की तरफ में है। So they are avoiding present things and they are jumping to conclusions. They are trying to avoid the present facts and they are jumping to conclusions. Any doubts? Okay, so we will stop here. This was for your alphabet T. In case anyone has any doubts in alphabet T, you can ask. Collect your handwriting samples. उसमें सैंपल्स में से टी देखो, कभी कुछ पुराना लिखा होगा, उसको खोल के अपना टी देखो, आसपास लोगों का टी देखो, and see if you can make the analysis. Whatever traits, characteristics we have done, they'll be exactly matching their personality. Right? Okay, so before the meeting ends, we are also starting with a professional course in graphology. The details I'll share in the group. And we also have other free workshops lined up for this month. So you can definitely join that also. So do we have Astro Tarot course lined up? Astro Tarot, not in January. Or Health Tarot? Not in January. Okay. Most welcome, ठीक है, जो Himadri. Okay, so let's end this session. See you all soon, right? Bye. Good night, everyone. Nice.